Hi, everybody. Invest in yourself. You can afford it. Today is 3rd of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 149 Geography. Teak and sal are the products of tropical dry deciduous forests. Which of the following plants have no flower? The answer is fern. Which of the following states' forests are classified as subtropical forests? Subtropical. The answer is Madhya Pradesh. Indira Gandhi Canal has its source at Harike Barrage. Bhakra Nangal is a joint project of Haryana, Punjab and Rajasthan. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल हैं Pong Dam is constructed over which of the following rivers? Pong Dam. Tulbul project is associated with which river? Balighat Bagliar Hydroelectric Power Project. Bagliar Hydroelectric Power Project is located in which state? Teesta Hydropower Project is located in which state? द कल्पसर प्रोजेक्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर है, यह भी काफी न्यूज में था. दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है वैलरस. वैलरस का मतलब होता है फुल ऑफ वैलर, वीरता. शोइंग ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन अ बैटल. अबेट का मतलब होता है उकसाना, एनकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, in particular to commit a crime or other offense. Undulating इसका मतलब है लहराता हुआ, move or go with a smooth up and down motion. Then perpetual का मतलब होता है लगातार, never ending or changing, everlasting, never ending, eternals. वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अनसर्टेन, इनडेफिनेट, अनक्लियर. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1 and this is question number 2. Try to answer these 2 questions. Then आज के 2 सवाल हैं आंसर राइटिंग सेशन के लिए. पहला सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस. अफगानिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल भी आया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का. इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज एंड रूल्स इन इंडिया. वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज एंड रूल्स हमको कंसोलिडेट करने. दिस इज अगेन अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक. इस एक आंसर को प्रिपेयर करने से मिलते जुलते बहुत सारे सवाल हमारे तैयार हो जाएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के लिए भी. इस तरीके से हम करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो ये आंसर प्रिपेयर करिए एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट srajanindia.1. ऑलराइट. Now let us have a look at social media update. Can you identify this animal? Identify me. इस animal को इसकी background से can you identify ये कौन सा animal है? Wildlife Week Quiz 2022. Which is our national heritage animal? यहाँ लिखा है heritage animal, national animal नहीं. यहाँ लिखा है national heritage animal. So A, B, C, D. What is the right answer? Did you know में Government of India and the state governments have taken several steps for the conservation and protection of the wildlife and their habitats, providing them legal protection और उनको Schedule of Wildlife Protection Act 1972 में भी रखा जाता है. सो इन सब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. आज का जो सवाल है आपका आंसर राइटिंग का, उसमें आपको इन्हीं सारे लॉज को, रूल्स को, शेड्यूल्स को, ट्रीटीज को, एवरीथिंग वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कंसोलिडेट करना है. देन people all across the world rely on wildlife and biodiversity, because nature loves biodiversity. Wildlife biodiversity is important for sustainability. So बायोडाइवर्सिटी बेस्ड रिसोर्सेज जरूरी हैं टू सपोर्ट देयर बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, फ्यूल, मेडिकेशन, हाउसिंग, क्लोथ्स. ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इस पे भी डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है ट्राइबल पीपल की.
So that is why wildlife and this forest is very, very important. Millions of people rely on nature for their livelihood and economic prospects as well. So that is why conservation of wildlife is very, very important. Guess the name of this Bengali delicacy. ये एक बहुत अच्छी delicacy है, आपको नाम बताना है ये कौन सी delicacy है. Can you guess the name of this Bengali delicacy? Then this is guess the name of the city. Can you again identify ये कौन सा शहर है, कौन सा शहर है इस bridge के through can you identify? Then this bird is critically endangered species of India और इस bird का नाम है the Great Indian Bustard, the Great Indian Bustard. लोकली इसको बोला जाता है गोदावन, घोराड, सोन चिड़िया. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा में ये मिलता है और ये हैवी है. दिस इज हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. ऑलराइट, सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट्स. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, मंडे October 3rd, दिल्ली एडिशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक लुक एट दिस न्यूज़पेपर. एंड जो आपके सबमिशंस हैं 30th सितंबर के, यू वांट वन मोर डे, तो इनको हम कल डिस्कस करते हैं. जो आपने यहाँ पे आंसर राइटिंग किया है, आंसर राइटिंग बहुत आसान है. ऑल यू हैव टू डू इज ऐसे पेन एंड पेपर में आंसर लिखना है, उसका एक फोटोग्राफ खींचना है और उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर देना है. डिस्कस इनेबल्ड है, ज्वाइन द डिस्कशन, और फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पेन एंड पेपर. ऑलराइट, सो ये जो था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अराउंड से 30 to 60 वर्ड्स. ये 5 जो शब्द दिए हैं ये इस दफे मेंस 2022 में भी पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन है. सो ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट एथिक्स के, ये 5 शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करिए एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट. और ये कोर्स है, दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. ये कोर्स अभी ऑनगोइंग है. Prelims 2022 is over, Mains 2022 is over. Now this is Prelims 2023. Prelims 2023 के अंदर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी. कल एक प्राइमर क्लास था, आज उस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एटसेट्रा. अवर आइडिया वुड बी कि इसमें अराउंड 75 to 80 चैप्टर्स हैं. ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर टू कवर हमें ये पढ़ना है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. वी विल ट्राई टू बी क्विक और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए पॉलिटी हम कंसोलिडेट करेंगे. पॉलिटी एक बार कंसोलिडेट हो गया, इकोनॉमिक्स के भी मैं प्रीवियस वीडियोस बाय नाइट आपसे शेयर कर दूंगा. इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, देन वी विल मूव टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइक दैट वी विल कवर द कोर सब्जेक्ट्स. दिस विल बी राउंड 1 एंड राउंड 2 में हम फिर दूसरा रिवीजन पार्ट करेंगे. ओके, टू ज्वाइन दिस कोर्स यू हैव टू स्कैन दिस QR code. देयर इज अ वन टाइम फी ऑफ ₹1111. You after paying the fee, send an email to 1@srajanindia.1. That's all. I will share a Google form in your mail ID. Fill that Google form. That's all. Okay, so see you in the live classes. All right, so this is the Hindu October 3rd Delhi edition. 62% rural houses have tap water connection. नल का पानी, साफ पानी, पोर्टेबल वाटर. सो दिस इज अ वेरी बेयर मिनिमम जो यहाँ पर अर्बन एंड रूरल बोथ प्लेसेस में प्रोवाइड कराना रिक्वायर्ड है. Around 62% of rural households in India have fully functional tap water connection within their premises. घर के आंगन में, घर के अंदर ये टैप वाटर अवेलेबल है. ये एक सर्वे हुआ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का और ये फाइंडिंग है. ये जो मिशन है कि टैप वाटर हमें हर घर में पहुंचाना है, इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन. टैप वाटर रूरल अर्बन एवरी हाउस होल्ड में प्रोवाइड कराना है. सिमिलरली स्टेट्स में भी दिया है 80% ऑफ हाउस होल्ड्स में फंक्शनल कनेक्शंस हैं, विच इज अगेन अ रियली गुड थिंग. अगर हम दिस जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन अर्बन की बात करें, सो बजट 2021-22, बिकॉज रूरल तो 2019 से चल रहा है, अभी जो रिसेंट बजट था उसमें जल जीवन मिशन की भी बात है अर्बन. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स यहाँ प्रोवाइड कराना है. और ये आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के अंदर, SDG नंबर 6.
जल जीवन मिशन रूरल है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा अर्बन। 55 लीटर का वाटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने की बात थी अंडर जल जीवन मिशन। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज एक तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज्यादा इसका आउटले डिसाइड कर रखा है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, मनी जल जीवन मिशन के ऊपर फोकस्ड है। सो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंड, अगर वाटर बॉर्न डिसीजेस को हम टेकल कर लेते हैं, बिकॉज स्वच्छ पानी आएगा तो वाटर बॉर्न डिसीजेस कम होगी, वाटर बॉर्न डिसीजेस कम होगी तो ये जो डिसीज बर्डन है, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, डिसीज बर्डन को हम काफी हद तक कम कर पाएंगे, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो ऑब्जेक्टिव्स जल जीवन मिशन के होंगे, टैप एंड सीवर कनेक्शन को सिक्योर करें, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। Can you tell what is the meaning of this word circular water economy? Prepare a very short note. What do you understand by this word circular water economy? So ये तो हो गया जल जीवन मिशन अर्बन। Then this is Dasara begins. Days are numbered. Boys walking beside effigies. ये जो पुतले होते हैं इनको effigies बोलते हैं। Mythical demon king Ravana, which are ritualistically burned on the day of Dasara, kept on sale along a roadside in New Delhi. तो दशहरा celebrations है ये। So this is the front page of the Hindu. Then this is capital lag हो रहा है स्वच्छ रैंकिंग में। एजुकेशन प्लस में बात है नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी होती है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, रीजनल लैंग्वेज और वर्नाक्यूलर में अर्ली एजुकेशन को एनकरेज किया जा रहा है। द आइडिया शुड बी, जैसे आगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेपरेट टॉपिक भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टूल्स, इन सब के थ्रू व्हाई कांट वी हैव अ सिस्टम जिसमें लैंग्वेज एक बैरियर नहीं हो, लैंग्वेज एक बैरियर नहीं हो। सो दिस इज दैट। वो पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड है, कैन यू टेल दैट वर्ड? जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है और बोलता है। देन दिस इज बेकॉनिंग दिस रेवलर्स। ये अगेन डेकोरेशन हो रहा है दशहरा एंड आयुध पूजा का। बनाना सैम्पलिंग्स, मैंगो लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन्स यहाँ पर सोल्ड हो रहे हैं। सो दिस इज festive season, this is festive season. Then Visakhapatnam, a graveyard for submarine, graveyard for submarine। 1971 का जब बांग्लादेश लिबरेशन था, बांग्लादेश लिबरेशन में ये इंडिया है, दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड विशाखापट्टनम इज समवेयर लाइक हियर, यहाँ पर है, ओके। और ये था बांग्लादेश। अब बात ये थी, बांग्लादेश का लिबरेशन चल रहा था और पाकिस्तान ने अपनी यहाँ पर दिस नेवल सबमरीन भेजी थी, आईएनएस गाजी। इन 1971 की वॉर में इस आईएनएस गाजी को इंडियन नेवी ने यहाँ पे आईएनएस गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया, आईएनएस गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके जो रिमेन्स है वो अभी भी समवेयर इन इंडियन ओशन नियर विशाखापट्टनम, डीप इनसाइड द ओशन है। सी, ये म्यूजियम में रिकवर्ड जो पार्ट है पीएनएस गाजी का, पीएनएस गाजी डिस्प्ले ऑन दिस विशाखा म्यूजियम, विशाखा म्यूजियम। ये जो इवेंट था पीएनएस गाजी को पाकिस्तान नेवी की इस सबमरीन गाजी को जो डिस्ट्रॉय किया गया था, ये एक टर्निंग पॉइंट था 1971 वॉर का। सो दिस इज विशाखापट्टनम। देन दिस इज एडिटोरियल बॉक्स्ड इन। A high price restrain consumption, inflation control must be top priority. Inflation control must be top priority. Inflation होता है तो इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट्स नजर आते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के? कैन यू आंसर दिस? जैसे मैंने आपको बताया था डेटर पे क्या इम्पैक्ट है, क्रेडिटर पे क्या इम्पैक्ट है, तो इन्फ्लेशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या होते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या होते हैं? सो दिस इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर टोटालिटी देखें तो नेगेटिव्स ज्यादा है, दैट इज वाई आरबीआई ट्राई कि इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं हो तो बहुत ज्यादा भी नहीं हो, ये हमेशा 4 ± 2% पे होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी।
और इन्फ्लेशन टाइटन करने का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मॉनेटरी टूल होता है जो रेट्स हाइक कर दो। जैसे रेपो रिवर्स रेपो रेट अभी हाइक हो गया, 50 बेसिस पॉइंट पे हाइक हुआ। तो ये जो हाइक करने का डिसीजन है, दिस इज लाइक इनएविटेबल था बिकॉज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में भी, डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना जरूरी है ग्लोबली और इंडिया भी। तो शक्तिकांता दास साहब ने एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन का बात लेते हुए यहाँ दिस जो बेस रेट है उसको बढ़ाया, रेपो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया। ग्लोबल इकोनॉमी इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म। कल मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमी में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज अभी किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जाएगी। रशिया का जो अभी नया मूव है, एनेक्स कर लिया है बहुत सारा एरिया यूक्रेन का, ताइवान क्राइसिस अभी भी बना हुआ है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का अभी इलेक्शन होना है। ये 3 इवेंट्स डिसाइड करेंगे कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं ये कैसे होंगे। Emerging market economies in particular are confronted with challenges of slowing global growth. वर्ल्ड में स्लो डाउन आ रहा है, रेसेशन की बात है 2023 में। रेसेशन होगा तो डिमांड नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। एलिवेटेड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस है बिकॉज ऑफ से दिस वॉर। स्पिलओवर्स है फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन। यूएस में भी इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है तो वो भी रेट हाइक कर रहा है यूएस का फेडरल बैंक। सो दैट इज वाई जितने भी डेवलपिंग मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया का स्टॉक मार्केट हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, जापान का हो गया, यहाँ फ्लाइट ऑफ कैपिटल नजर आ रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। शार्प करेंसी डेप्रिशिएशन भी हो रहा है, करेंसी रुपये हमारा 81 क्रॉस कर रहा है, करेंसी डेप्रिशिएशन। ऑल्दो दूसरे कंट्रीज के रेस्पेक्ट में रुपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है। रुपी डेप्रिशिएट से हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कराता है, स्पेशली ऑयल फ्यूल। सो द आइडिया इज इन्फ्लेशन को ग्लोबली भी टेम करना जरूरी है और डोमेस्टिकली भी इन्फ्लेशन को टेम करना है, बट एट द सेम टाइम डिमांड सबड्यूड नहीं होनी चाहिए बिकॉज इंडियन मार्केट इज अ वेरी यूनिक मार्केट। इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली वर्ल्ड इकोनॉमी से शील्डेड रहती है, हमारी इकोनॉमी प्राइमरली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन होती है। सो दिस अगेन वी नीड टू टेक केयर। सो मिस्टर दास वाज राइट टू पॉइंट आउट द मल्टीपल फैक्टर्स दैट कुड अपएंड द आरबीआईज इन्फ्लेशन आउटलुक। डिमांड को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। डिमांड इसलिए भी लोअर हो सकती है बिकॉज खारिफ आउटपुट इस बार कम हुआ है। इंडिया में मानसून डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मानसून अगर खारिफ क्रॉप कम होगी तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा, डिमांड कम आएगी हिंटरलैंड रूरल इंडिया से, एंड देन इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी। सो द आइडिया इज विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन के साइन क्लियर है। कोविड-19 के बाद जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं और हॉकिश स्टांस यहाँ पे लेने का डायरेक्शन दिख रहा है। आरबीआई का लेटेस्ट सर्वे भी है और बता रहा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी कम है, राइज हो रहा है प्राइस प्रेशर से, इन्फ्लेशन आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। दीज थिंग्स वी नीड टू फिक्स। चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट। सी, ये एक बहुत सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर के विज साहब ने लिखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। बात है सरेंडर या बात है अबैंडनमेंट। अबैंडन करना का मतलब होता है आपने उसको छोड़ दिया है। सरेंडर करना का मतलब होता है सेफ सरेंडर, कि आपने उसको हैंड ओवर कर दिया है टू सम अथॉरिटीज। अब सी बात है यहाँ पे बेबीज का। कई बार जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं एंड बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स उन बेबीज को नहीं रख पाते। देन व्हाट? क्या वो बेबीज को जैसे कुछ ऐसे सॉरी फिगर्स मिलते हैं हमें, सॉरी केसेस देखते हैं जहां पे अबैंडन कर दिया है उस बेबी को, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। द आइडिया इज अबैंडन के बजाय हमें एनकरेज करना चाहिए सेफ सरेंडर। सो द आइडिया इज कि जैसे न्यू बॉर्न चिल्ड्रन का न्यूज हम देखते हैं कई बार, वी सी दिस न्यूज। सो द आइडिया इज कि इस अबैंडनमेंट को हम कंट्रोल करें, इस अबैंडन को हम दिस लॉज अवेयरनेस के थ्रू इसके लिए जागरूकता फैलाए, ताकि अबैंडन नहीं करो उनको एक इंस्टीट्यूशन हम प्रोवाइड करें जहां पर आप सेफ सरेंडर कर सकते हैं। दिस वी नीड टू डू एज अ सोसाइटी भी, और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए।
बाकी यहाँ पे लॉज लिखे हुए हैं, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 317 में इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए। एक कमिटी भी है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चाइल्ड 2015 एक्ट के अंदर। द आइडिया इज कि जो अबैंडनमेंट है उसको हमें चेक करना जरूरी है, सरेंडर का हमें फोकस करना चाहिए। Abandoned child means a child who is deserted by his biological or adoptive parents or guardians. While a surrender child is relinquished on account of physical, emotional and social factor beyond their control. So surrender है और abandon है। The idea is surrendered में भी हम safe surrender करें। So abandoned मतलब a child who is deserted by his biological or adoptive parents or guardians. Surrendered child is relinquished on account of physical, emotional and social factors beyond their control. So Juvenile Justice Act जिसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन अदर लॉज इन फोर्स, ये टॉप प्रायोरिटी लेता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें लिखा है नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनी बायोलॉजिकल पेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी रिलेटिंग टू एन अबैंडन्ड एंड सरेंडरिंग चाइल्ड। पर्पज है कि इससे एफर्ट्स आर मेड टू ट्रेस द पेरेंट और गार्डियन ऑफ द चाइल्ड विदाउट इनिशिएटिंग एनी क्रिमिनल एक्शन, कि जो बच्चा अबैंडन्ड है, सरेंडर्ड है, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का हम पता लगा सके, और इसीलिए वहां पे क्रिमिनल एक्शन का प्रोविजन नहीं है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। बट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सरेंडर अ चाइल्ड रादर देन अबैंडन हिम इफ द कंडीशंस टू रिटेन द चाइल्ड आर बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन। अबैंडनमेंट से क्या होता है, उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। सरेंडर अगर हम जैसे सीडब्ल्यूसी के सामने करें या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इट इज लाइक कि देयर इज अ गारंटी दैट चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ till he or she attains majority or is adopted by a fit or willing parents। काफी सारे पेरेंट्स होते हैं, उनका से बच्चा नहीं है, सो वो क्या करते हैं, एडॉप्शन के थ्रू जाते हैं। सो द आइडिया इज कि अबैंडन से चाइल्ड का लाइफ एंडेंजर होता है। सरेंडर अगर सेफ सरेंडर अगेन ये गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, उनके थ्रू ही, नॉट इन अदर वेज। सेफ सरेंडर जो होता है, इससे उसकी लाइफ की यहाँ पर गारंटी हो जाती है और इन फ्यूचर उसको विलिंग पेरेंट्स भी मिल सकते हैं। तो इन बिटवीन दीज टू सेफ सरेंडर इज अ बेटर ऑप्शन। देन मोस्ट ऑफ द रीजंस क्या होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ अ रिलेशनशिप, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या बोथ पेरेंट्स बीइंग ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक, चाइल्ड कैन बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर सरेंडर। और फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके थ्रू इंक्वायरी काउंसलिंग होगा, और एट टाइम्स जो दूसरे पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी प्रोसेस भी ओपन रहेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ सेव करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो दैट इज वाई अबैंडन से ऊपर सेफ सरेंडर को यहाँ पर एनकरेज करने की बात की गई है। और इनमें से दोनों ही केसेस में कोई भी क्रिमिनल एक्शन एंटेल नहीं होता है। अब बात है, जैसे अभी दिस लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ है मेडिकल दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। द आइडिया इज कि अब मैरिड और अनमैरिड दोनों केसेस में दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिस ऑफिशियली अलाउड होगा। अवेयरनेस इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। One of the major reasons for the abandonment of children is a lack of awareness about the law on the surrender of unwanted children। At times ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन हो जाएगा, क्रिमिनल दिस एफआईआर वगैरह होगा। नो, ये नहीं होगा। You all have to do is go for this safe surrender। Since it is believed that most cases of unwanted pregnancies are known to आशा वर्कर हैं accredited social health activists, दाइज एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। सो दैट इज वाई एक नेटवर्क भी पैरेलल में हमें बनाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें, और ऐसे जो इंसिडेंट्स आते हैं अबैंडनमेंट के, इसको हम कम करें। The surrender deed is to be executed before the CWC only. A parent or guardian may approach any police officer, public servant, childline services, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर और पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, नर्स और डॉक्टर और मैनेजमेंट ऑफ अ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, जहां पर वो ऐसा सेफ सरेंडर करना चाहते हैं। सो अगेन अबैंडनमेंट नहीं, सेफ सरेंडर को यहाँ पर पुश करने की बात है।
सो अगर नॉन रिपोर्टिंग हुआ अबैंडनमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा। ड्यूटी होगा सच अथॉरिटी का कि विद इन 24 आवर उस चाइल्ड की रिपोर्टिंग करें सीडब्ल्यूसी पे, नहीं होगा देन फिर वो एक ऑफेंस माना जाएगा। द आइडिया इज यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स को अवेयरनेस, दिस अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड सो दैट ये जो इन्फेंट अबैंडनमेंट के केसेस आते हैं इनको हम कंप्लीटली स्टॉप कर पाए। अब इस टॉपिक को आप कैसे यूज कर सकते हो? आप सोशियोलॉजी में यूज करो GS1 में, गवर्नेंस में यूज कर सकते हो GS2 में। थिंक सो दिस इज अ टेम्पलेट। देन द यूके इज स्टार्टिंग इनटू एन इकोनॉमिक अबिस। यूके में डिफिकल्टी है। महात्मा गांधी जी इज द पीस मेकर। पीस इज इंपॉर्टेंट। एक वर्ड होता है पीस डिविडेंड। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस डिविडेंड? पीस डिविडेंड। अंडरस्टैंडिंग द दुर्गा पूजा इकोनॉमी। अब ये जो दुर्गा पूजा है ना, इसमें लाइक फेस्टिवल मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है एट टाइम्स, जैसे डी स्पिरिटेड भी है। फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय, फेस्टिविटीज एटसेट्रा। सो दिस इज अगेन अ गुड इकोनॉमी। तो दिस इकोनॉमी इज अगेन क्लाइमेट इन वेस्ट बंगाल। दिस इज अगेन लाइफलाइन। Iran's indices and the immediate causes of protest. इंडोनेशिया में सॉकर मैच टर्न्स डेडली ड्यू टू स्टैम्पीड। भगदड़ मच गई। 125 डेथ टोल है। तो दैट इज वाई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए। स्पोर्ट्स शुड बी टेकन लाइक स्पोर्ट्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बिकम नेट सेलर सितंबर में एंड कंजम्पशन हिट बढ़ रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी इज पॉसिबल। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन फॉल होगा नेक्स्ट ईयर। Then this is Iran case. Then the rise of the far right in Italy. ये है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम में अभी एक ब्रेकेज आ गया है। लीक्स का रिपोर्ट आया है सितंबर 26 में। अब सी, दिस इज रशिया, दिस इज जर्मनी, दिस इज रशिया, दिस इज जर्मनी एंड दिस इज बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है, ये जर्मनी है, ये रशिया है। रशिया टू जर्मनी वाया बाल्टिक सी। दिस इज अ गैस पाइपलाइन। ऐसी दो गैस पाइपलाइन है। एक गैस पाइपलाइन 1 है और दूसरी पाइपलाइन 2 भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी अभी। तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये जर्मनी की लाइफलाइन है। रशिया नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है। रशिया और जर्मनी इंपोर्टर है। तो यहाँ अभी ब्रेकेज नजर आया सो दैट जर्मनी का गैस सप्लाई हैम्पर हो रहा है और जर्मन इकोनॉमी अंडर डिस्ट्रेस आ सकती है। इस पूरे का जो बैकड्रॉप है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है। लेट अस सी। बट हमें ये जानना है वेयर इज दिस नॉर्ड स्ट्रीम। सो नॉर्ड स्ट्रीम इज इन बाल्टिक सी। कैन यू टेल कि बाल्टिक सी के जो लिटोरल स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? लिटोरल स्टेट्स मतलब जिनका बेसमेंट है बाल्टिक सी में ओपनिंग है। कैन यू टेल ऑल द नेम्स ऑफ दोज स्टेट्स? ओके, सो दिस इज बाल्टिक सी। Then this is the race to provide exhaustive satellite broadband services in India. Broadband services, internet broadband satellite के through. The language of old blighty actually Indian origin का word है। जो अंग्रेज थे उनको हम बिलायती बोलते थे। विलायती और उससे ये ब्लाइटी वर्ड बना। What is the difference between discover and invent? डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। डिस्कवर किया है आपने। जैसे कि अमेरिका को डिस्कवर किया था कोलंबस ने 1492 में। वो ऑलरेडी है, अमेरिका इज देयर, अमेरिका लैंड इज देयर। उसका हमें आइडिया नहीं था, हमने उसको डिस्कवर किया। दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। इन्वेंट का मतलब होता है कि वो चीज एग्जिस्टिंग ही नहीं थी और हमने उसको नया बनाया। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। सो द आइडिया इज this is invention. The explorers discovered gold deep inside the cave. I want to invent a machine. मशीन का इन्वेंशन हुआ है। हम पढ़ते हैं ना इन दिस वर्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और यहाँ एक वर्ड आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मेजर इन्वेंशंस। कैन यू टेल सम ऑफ द इन्वेंशंस जो हुई थी दिस वर्ड हिस्ट्री में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्टीम इंजन आया था। टेल स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? सिमिलरली हमने यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब का देखा, इलेक्ट्रिसिटी का देखा। आप बताओ ये जो एयरप्लेन्स है ये किन ब्रदर ने इन्वेंशन किया था? एयरप्लेन्स, दिस एयरक्राफ्ट। ओके,
सो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस बताइए जो हुआ था दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, जिन्होंने ट्रिगर किया था, प्रोपेल किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। ये किंडरगार्टन है, छोटे बच्चों को, कैन चिल्ड्रन इन किंडरगार्टन बी कॉल्ड वार्ड्स। तो इंग्लिश में एक ये वर्ड भी है, ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है। वार्ड मतलब से वॉचमैन, देन सेंट्री कीपर, छोटे बच्चों का वो गार्डियन टाइप है, तो उसको वार्ड है। और वो जो बच्चे हैं वो उसके वार्ड है, उसके वार्ड है, लाइक हुज वार्ड इज दिस किड, लाइक दैट। देन ब्रिटेन को समटाइम्स ओल्ड ब्लाइटी बोलते हैं, इसका इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन वर्ड है विलाइटी, फॉरेनर, तो इससे बिलाइटी वर्ड आया। देन वर्ड ऑफ द डे है फॉर्चूटस, इसका मतलब है हैविंग नो कॉज और एपरेंट कॉज, अकरिंग बाय चांस हो गया वो फॉर्चूटस। कॉजलेस और अनएक्सपेक्टेड था। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज प्रॉफिट्स वर एनहेंस्ड बाय अ फॉर्चूटस ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ऑयल का प्राइस अचानक बहुत कम हो गया, तो उससे क्या होगा, जो इंपोर्ट, जो ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज है उनको रॉ मटेरियल सस्ता हो गया और बहुत फायदा हो जाएगा। सो दैट इज फॉर्चूटस। Nobody can doubt India's feeling for Afghans, say जयशंकर साहब on student visas। अब सी, जब मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस अभी मेंस में भी पढ़ाया था, और ऐसे भी इन जनरल जो हम एक टोन रखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन एवर इट कम्स टू अफगानिस्तान, इंडिया की काफ़ी फ्रेंडली अप्रोच रहती है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में हमने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी डाले हैं काफ़ी। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज ने बूट्स ऑन ग्राउंड्स किया, सोल्जर्स सेंड किए, वेपन सेंड किए, डिस्ट्रक्शन, ऑल द जो एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके लिए वो दे वर बिहाइंड दैट। बट इंडिया ने यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट किए। पॉजिटिव डेवलपमेंट मतलब हमने यहाँ का पार्लियामेंट बनाया, यहाँ पे सलमा डैम है, यहाँ रोड्स है, यहाँ राशन, मेडिसिन एटसेट्रा, ह्यूमैनिटेरियन एड्स किया, ह्यूमैनिटेरियन एड्स। नोबडी कैन डाउट इंडियाज फीलिंग्स फॉर अफगान्स। तो दिस इज अगेन वेरी क्लियर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी यहाँ पे बताया। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था वीजा सिस्टम का, तो यहाँ पे बताया कि दिस अफगानिस्तान इज वेरी डियर, पीपल ऑफ अफगान वेरी डियर। Then UK firms ask India to unravel frustrating red tape, take broader view on lending norms. Suzlon Energy founder Mr. Tulsi Tanti dies of cardiac arrest. Then this is Mahatma Gandhi ji remembered. यहाँ पर सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। देन NEP प्रिस्क्राइब्स नो लैंग्वेज। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड को जीता है। कल हम आंसर राइटिंग करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण पे। NRIs बेनिफिट होंगे फ्रॉम UAE's न्यू पॉलिसी ऑन इमिग्रेशन। एक वर्ड होता है NRI, दूसरा वर्ड होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कैन यू टेल द डिफरेंस NRI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पे? Then this is Florida, this is Iran, then this is Burkina Faso, Bulgaria. Ukraine troops है, then this is Maldives, अपसी। US, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू बूस्ट मिलिट्री टाइज, जैसे क्वाड भी है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US के कई बार इनको वसाल स्टेट भी बोला जाता है, मतलब US का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, व्हेन इट कम्स टू जापान। इवन UK का भी जो अभी ऑकस ट्रीटी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने की बात थी। अगेन ये जो पूरा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अगेन इन अ वे टू काउंटर चाइना, सो US, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू बूस्ट मिलिट्री टाइज। ये जो चाइना का ग्रोइंग एम्बिशंस है, जैसे जिस तरीके से चाइना अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है, US यहाँ पर अलार्म्ड फील कर रहा है। सो टू चैलेंज द चाइना ग्रोइंग एम्बिशंस, US टाई अप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान से टू बूस्ट मिलिटरी टाइज। Our interest lies in upholding of the global rules based order। ये यहाँ पे इक्वेशन बताया गया है। पाकिस्तान कैबिनेट है और यहाँ पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, चाइना पे रेट्स इंक्रीज हुआ है। देन दिस इज 81 kg गोल्ड, वेरी गुड, दिस इज 81 kg गोल्ड यहाँ पर नेशनल गेम्स में जीता। सो दिस इज स्पोर्ट्स, ऑलराइट। और आज का आंसर राइटिंग को एक ब्रेक देते हैं। यू हैव गॉट वन मोर डे। ये सारे 4-5 कीवर्ड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वी विल डिस्कस इट टुमारो, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।